everything will be completed today. अच्छा जी, तो चार्ज नहीं किया, चार्ज है तो अच्छा खासा। ओके, सो differentiation differentiation of inverse trig function. Say, so in our syllabus we have only one inverse trigonometric function to integrate, and that is to differentiate, and that is the tan inverse x. Okay, so d of dx tan inverse of x, right? So this is something that we have to differentiate. Okay, and the basic differentiation of this one, of this formula for this one is it is very simple. You can just write it as 1 plus x square. This is a simple differentiation. Okay, or if you want to make the formula, so the formula looks like formula. Okay, this is by the way newly added in the syllabus in 2022, I think. No, 2020. Acha. So if you have tan inverse of the argument, okay, and you have to differentiate it, right? You have to differentiate it with respect to x, right? So the differentiation will always look like 1 over 1 plus whatever the bracket you have, you just write it here and you have to square it and times it by the bracket ka derivative. Okay, the derivative of the bracket. Okay, so this is the simple formula, right? Like if you have like whatever inside the box, so you have to write the box as it is and you have to square it and then just take the derivative of it and multiply it, right? And this is like the simple differentiation to it, right? Like if they give you, if let's say the question give you y is equals to tan inverse 2x, right? Then Ajay, by the way, this should be 1 and this should also be 1, right? These are the two number, they have to be the same, right? They always have to be 1, right? So if you have y is equals to tan inverse 2x, so the d of dx, like the derivative of tan inverse 2x with respect to x, is going to be 1 over 1 plus, and now whatever the box you have, 2x, you have to square it and then you have to multiply with the derivative of it, so which is just the 2, right? So the simplification to it is going to be 2 over 1 plus 4x squared. Okay, so this is the differentiation of dy over dx, right? Is that clear, guys? Okay, another question. So if you have like if you have y is equals to
tan inverse 6x cube, okay, 6x square plus 2x, okay, and outside we have 5, okay. No, we have 1 over 2, okay. Now we have to find the dy of dx, okay. So d of 1 over 2 tan inverse 6x square plus 6x plus 2x, right, of dx can be written as um 1 over 1 plus, inside the box we have 6x square plus 2x, and you have to square the whole thing, and on the top you just need to multiply with a derivative, so it's going to be 12x plus 2, okay. And I have 1 over 2 outside, right? So if you want to take 2 common from the top, so it will just be 2 ones are 2, 2 6 are 12, and 2 ones are 2. So 6x plus 1 divided by 1 plus 6x squared plus 2x whole square, okay. And this is dy by dx, right? Guys, that clear? Okay, so this is something that is basically known as the differentiation of the inverse trigonometric function, okay. Now moving on to the acha, moving on to the chain rule, okay, right? So in chain rule, if they ask you to find out dy by dx, okay, so and they have given you the different equation for y, okay. Let's say you have the y in term of some equation, okay, and x in term of some equation, like the some same variable, right? Okay, so it can be anything, right? Like in term of, let's say t, okay, or in term of t, let's say, right? They both have to be in the same form or in the same third variable form, right? So now when you find out the dy over dt from the first side, sorry, dt, okay, and guys, am I lagging to everyone? नहीं सर सही है. Okay, and then dy over dx over dx over dt, right? So यहाँ से I'll get this, and यहाँ से I'm getting this, right? So and we have to make dy by dx, so हम इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं भाई? यहाँ पे अगर चेन रूल के अंदर जो है, अगर हमें अरेंज करना हो, सो हम क्या करेंगे? We just need to do dy by dt and then multiply by dt over dx, right? Is it making sense? So this is how we used to do the chain rule thing, right? So chain rule के अंदर जो है ना, if you have two variable given in the third variable form, so आप क्या करते हो, पहले उसको differentiate करते हो and you use the chain rule, और फिर आप उसको इस form के अंदर convert कर लेते हो, right? Is that clear?
ये समझ में आ गया। और इसी चीज़ को जो है ना हम बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, राइट। कि अच्छा, दिस इज लाइक द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द चेन रूल। अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अच्छा सब, ये तुम कुछ क्वेश्चन वगैरह किए हुए इसके डिफरेंशिएशन के, या कॉलेज में कंप्लीट हो गया नहीं हुआ? और पीजी पूरा कंप्लीट हो गया? कितना वाक़ है भाई? ओके, देख ले बेटा, क्योंकि मैंने टेस्ट लेना है। हाँ, मैंने वेंसडे को टेस्ट लेना है इन सब चीज़ों का। सही, डिफरेंशिएशन भी इंक्लूडेड है। ओके, व्हेन एक्स एंड वाई आर गिवन इन टर्म ऑफ एन अदर वेरिएबल, सही है, another variable, okay, use a chain rule to differentiate. Use a chain rule and derivative to form dy by dx. Okay, let's say जैसे कि अब जो है तुम्हें तुम्हें जो है ना कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं, सही है। डिफरेंशिएशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सही बात है। हम्म, एक सेकंड देना जरा, मैंने क्वेश्चन निकालने दो। ओके सो, okay, so the question given to me is x is equals to t square plus 1, okay, and you have y is equals to 4t plus ln 2t minus 1, right? तुमसे कह रहा है कि express dy over dx in term of t, right? So find dy by dx. Okay, क्या करोगे? So you just need to differentiate dy dx over dt. Okay, come on. It will turn out to be 2t, and dy over dt will turn out to be 4 plus 1 over 2t minus 1 times just 2. Right. And then you do dy by dx, right, is equals to dy by dt times dx by dt, right? So dy by dt तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 plus 2 over t plus t minus 1, right? जो ऊपर सही है। आपने फॉर्मूला लिखवाया था वो दिखाएगा चेन रूल का।
ये था। इधर डी टी ओवर डी टी था। डी टी और डी एक्स है यार माजरत। ओके। सही डी है। एक्स ओवर डी टी या। डी टी और डी एक्स उल्टा करके, उल्टा करना है हमें। सही। यानी बेसिकली आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि दिस इज लाइक डी वाई ओवर डी एक्स डी टी, राइट, एंड देन डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी, हमने ये किया बेसिकली, राइट। सो जो डिवीजन साइन था वो मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड डी टी ऊपर चला जाएगा, डी एक्स नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 2t। सॉल्व कर लो। 2t - 1 एंड देन 1/2t। सही हो गया। ओके, सिंप्लीफाई कर लिया अब आप। सो 8t - 4 + 2, एंड देन यहाँ पे आपने इसको 2t से मल्टीप्लाई किया, राइट, एंड यहाँ पे आपने इसको 2t। ये पेंसिल को पता नहीं क्या हो गया। 2t - 1 से मल्टीप्लाई किया, एंड हियर यू गेट 2t - 1 एंड टाइम्स इट बाय 2t, राइट। सिंप्लीफाई अगर आप कर लें, सो 8t and this become -2, okay, times 2t, okay, plus 2t minus 1 divided by divided by you have um 4t square minus 2t, right। ये आ गया। अच्छा, अब जो है अगर हम यहाँ पे जाएं और हम इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें कि 8 to the 16t स्क्वायर्ड, सही है, और -4t and then +2t - 1, so divided by 4t square minus 2t। सो यहाँ से तुम्हारे पास सही है 16t² -2t -1 डिवाइडेड बाय 4t² -2t आ रहा है, एंड दिस इज बेसिकली dy/dx, राइट। भाई समझ में आ गया? जी सर। परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, आ जाओ कुछ और करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास है। x इज इक्वल टू ln cos x, ये cos थीटा ले लो, राइट, एंड y इज इक्वल टू 3 थीटा -tan थीटा। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? यस। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो भाई?
एनीवन जो इसको सॉल्व कर सकता है? मेरी एक छोटी सी ना गलती हो गई यहाँ पे। वो गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया और मुझे एलसीएम नहीं लेना था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास ये जो चीज़ बननी चाहिए, दैट विल बिकम 8t -2 डिवाइडेड बाय 2t एंड देन 2 - 1, ये बननी चाहिए। पता नहीं क्या किया था भाई, इसको करेक्ट कर दो यार प्लीज। अच्छा जी। हम्म। हाँ जी। वो नहीं आई यहाँ पे। परफेक्ट हो गया, सही। ये वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में बंद हो गया था। ओके, आ जाओ भाई, कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर लेते हैं। सो dx/dt आपने किया, सही है। सो dx/dt तुम कर dx/d थीटा हो जाएगा ये, सही है। और ये हो जाएगा 1/cos थीटा, एंड cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, राइट। एंड देन y इज इक्वल अच्छा dy/d थीटा, ये जो हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस tan का होता था सेक स्क्वायर थीटा, राइट। सेक स्क्वायर थीटा, ओके। अच्छा जी, चेन रूल अगर हम अप्लाई करें, सो dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय dx/d थीटा, राइट। सही है। उस हिसाब से जो dy/d थीटा, दैट विल बी 3 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, राइट, एंड डिवाइडेड बाय dx, यानी विच इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सही है। सो ये हो गया। अच्छा जी, सॉल्व कर लो इसको, सिंप्लीफाई करना है, सही है। अच्छा, tan थीटा के टर्म में आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्सप्रेस dy/dx इन टर्म ऑफ tan थीटा, राइट। हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो tan हो जाता है, राइट, वो तो डायरेक्टली हो जाएगा, सही। अच्छा जी। एंड वी नो दैट आइडेंटिटी, हमें पता है कि हमारे पास जो है अम, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो इफ आई डिवाइड both with cos square theta, right? So this become 1, that become tan. Okay, so tan square theta plus 1 is equals to sec square theta, right? So using trigonometry तुम इसको change भी कर सकते हो, right? सही है। अच्छा जी, एक सेकंड दे दो भाई, पहले इसको निपटा दें, उसके बाद शुरू कर देंगे। अच्छा, सो जो आइडेंटिटी है, द आइडेंटिटी सेज
sec square theta is equals to tan square theta plus 1, right? सही है. ओके. सो उसके अंदर जो है तुम इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट? सो 3 - tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट? ये आ गया. एंड डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन का साइन करो, साइन और tan इसको 1/tan हो जाएगा, राइट? 1/tan थीटा, राइट, विद अ नेगेटिव साइन. सही हो गया. सो if we simplify, so that become 3 tan. अब यार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से मैं गलत कर रहा हूँ. अच्छा जी. सो 3 - tan square theta minus 1, right? And then you have a negative sign here and then divided by tan theta, right? ये बन रहा है आपके पास. क्लियर हो गया? अच्छा जी. क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अच्छा जी. टेन को नेगेटिव. होल देंगे ना? नहीं नहीं, मतलब tan की फॉर्म में आंसर चाहिए. अच्छा यहाँ पे। सही है, लेकिन बस 1 2 3 कुछ दिख रहे हैं मुझे, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हाँ हम्म, वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर 3 और 1 अच्छा हो जाएगा। 3, ये 2 हो जाएगा. सही है. और माइनस माइनस प्लस, सो tan स्क्वायर थीटा -2. सही है. एंड डिवाइडेड बाय tan थीटा. सही हो गया. सो दिस इज dy/dx. क्लियर? अच्छा जी. भाई ये देख लो, पिछले वाली को देख लो अगर. ओके. तो बेसिकली, ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे फिर आगे जाएंगे. देख रहे हो भाई? अच्छा जी, आओ. सो लेट्स से आई हैव रिकॉर्ड जो है ना, साइन और कॉस पर आ रहा है. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, बस एक वन वन लास्ट क्वेश्चन. ट्रिग्नोमेट्री हम कर चुके हैं, एक और ट्रिग्नोमेट्री करते हैं ताकि ट्रिक की प्रैक्टिस रहे. सही है. सो another parametric equation says कि if you have y is equals to ln 1 plus sin t, right? And x is equals to t plus cos t, right? And you have to solve. So क्या करोगे? dy over dt कर लोगे, right? And that will give you 1 over 1 plus sin t, right? Times it by the derivative of it, so 0 plus sin का हो जाएगा cos t, right? And dx over dt will be 1 minus sin t, right? And then the chain rule will be dy over dx is equals to dy over dt, right, divided by dx over dt, right? So dy over dt is basically cos t divided by 1 plus sin t, okay, and then again divided by 1 minus sin t. Okay. डिवीजन के साइन को हटा के मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, सो ये हो जाएगा 1 plus sin t
and then multiply by 1 over 1 minus sine t, right? So now if I say कि ये तो हो जाएगा cos t divided by 1 square minus sine square t, right? A square minus b, a b, a plus b, a minus b का होल स्क्वायर में लगा दिया, राइट? सो अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है आई कैन रिड्यूस वन स्क्वायर बिकम वन ओनली, राइट? एंड दिस will be sin square t, right? So this can be reduced to cos square t, right? And then cos t divided by cos square t, okay? Then cos, one of the cos and cos goes off, and the remaining thing will become sec t, okay? And this is dy over dx. Is that clear, guys? ओके, सो ये हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास है, अम्म, यहाँ पे जो है ना, इसको हम कह रहे हैं पैरा इक्वेशन। सही है। ये हमारे पास आखिरी चीज़ जो है ना, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। सही है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सही है। So we have the implicit functions। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़े थे वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस पढ़े थे, यानी हमारे पास y इन टर्म ऑफ x आ रहा था, राइट? सही हो गया। और जो भी चीज़ थी उसके अंदर कोई एक चीज़ सब्जेक्ट हमारे पास बनी हुई थी, राइट? तो उसकी अगर हमने डिफरेंशिएशन करनी थी तो हमने उसको ऊपर देख लिया अभी, राइट? अब इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है कि जिसके अंदर y और x जो होता है ना, यानी जो एक्सप्रेशन होती है और y और x की फॉर्म में होती है, राइट? सही है। और वो y इन टर्म ऑफ x नहीं होती, राइट? एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट इट, ओके? सो द function is given in the form of x and y's, ओके? ये हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं, और जो हमारे पास सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन, जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं वो y इन टर्म ऑफ x होते हैं। एक सेकंड देना। ओके, सो अच्छा। अच्छा, अब लेट्स से जो इक्वेशन तुम्हें दी हुई है ना, ये तो सिंपल इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरह से होते हैं, राइट? लाइक तुम्हें जो है ना इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरह से दिख रहे होंगे। लेट मी शो यू। लेट्स से
the equation of कोई भी curve है सही है. So it looks like, let's say x square and then x plus 3y, okay, minus y cube is equals to 3, okay. So this is how it looks like, okay, right. अच्छा, अब इसके अंदर तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि देखो x को तो डिफरेंशिएट करना आसान है, राइट. सो इफ यू हैव x, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट टू 1. इफ यू हैव x स्क्वायर, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट टू 2x, राइट. so x का तो डिफरेंशिएशन आसान है, बट इफ यू हैव y, राइट, like if you have y, so it become dy by dx, right. So wherever you have y, you can replace it with dy by dx, okay. And if you have y square, then you do 2y dy by dx, okay. क्लियर हो गया. अच्छा जी. एंड हमारे पास इसके अंदर similarly if you have 3y, y cube, so you can differentiate it to 3y square dy by dx, right. And similarly, one last, if you have 4y, or basically y to the power 4, so that become 4y cube dy by dx, right. But this dy and dx is basically due to the fact that we have the expression is in the form of x and y's, right. Acha. what if you have x and y together, okay. So the derivative of this x and y will going to be, you have to use a product rule, by the way, right. So so use product rule, okay. So differentiate first, okay, and keep the y as it is, then differentiate y and keep x as it is, right. And then you can just x plus y plus x and dy by dx, right. And you can make, if it is equal to something, then you can make dy by dx a subject as well, right. And similarly, if you have, let's say, x 1 plus y square, let's say, and you have to differentiate, right. So again, you have to use a parametric function, sorry, product rule, and you can expand it to make it like that, okay. And then you can simplify. So x become 1, and on the other side, x plus y, you have to apply the product rule. So x become 1, keep y as it is, then make so keep x as it is and differentiate y dy by dx, right. So this is how you can simplify, right. So that become 1 plus y square plus 2xy and then dy by dx, right. So this is how we used to solve the implicit function, right. Now अगर तो क्वेश्चन के अंदर तुमसे लेट से यही इक्वेशन दी हुई है जो ऊपर मैंने दी हुई है, लेट से um, so let's say if you have this equation given, right, जनरली ये इक्वेशन आती है पेपर में, राइट. सो अब तुम क्या करोगे टू सॉल्व दिस वन, you just need to expand it, right, first. So x cube plus 3x square y minus y cube is equals to 3, right. Now when you start differentiating it, so it becomes 3x squared plus 3, and then now you have to use a product rule over here. So 2x, keep y the same, then um, left x the same and differentiate y, say, then 3y squared dy by
dx is equals to 0, राइट। एंड फिर यहाँ से जो है ना तुम सबसे पहले इसको तरीके से एक्सपेंड कर लो, 6xy प्लस 3x² dy by dx minus 3y² dy by dx, right, is equals to 0. Now take the dy by dx common. Okay, so dy by dx common, and 3x square minus 3y square and 3x square plus 6xy plus this whole thing. अच्छा जी, अब तुम इसको कर लो सिंप्लीफाई, सो 3x² प्लस 6xy, अच्छा उसको वहाँ ले जाओ, सो दैट बिकम dy बाई dx, लेकिन नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन मैं यहाँ पे ले आता हूँ, राइट। सो ये इसको हम कर लेते हैं y² माइनस 3x², समझ में आया? ये बड़ा स्टेप समझ में आई, होशियारी समझ में आई? यस। परफेक्ट। 3 को कॉमन लेके कैंसिल करा दो, सो इट बिकम x² प्लस 2xy डिवाइडेड बाय y² माइनस x² इज इक्वल्स टू dy बाय dx, राइट, क्लियर? नाउ इससे आगे जो है ना वो तुमसे एक दो चीजें पूछ लेते हैं, सही? यहाँ तक तो आसान सा क्वेश्चन था, तो कोई मुश्किल चीज नहीं थी, सही। अब यहाँ से आगे ना वो कभी कभार पूछ लेते हैं कि भाई कभी कभार तुमसे पूछते हैं कि भाई ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकाल दो, सही है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकाल दो, सही है, सही है। और या फिर तुमसे कह रहे थे कि भाई ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल निकाल लो कि जब वो पैरेलल या परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, राइट, ओके। सो अब बेसिकली इस ये जो तुम्हें इक्वेशन दी हुई होती है ना, जनरली ये कर्व की अजीब अजीब से शेप की होती है, जैसे सर्कल की इक्वेशन तुम मान लो इस तरह से ना, इस तरह की इक्वेशन आती है जैसे ये तुम्हें दिख रही है, राइट। सो अब इन इक्वेशन के अंदर जो है ना अगर तुम लेट्स से इमेजिन करो, मैं एक एक देखता हूँ अगर मुझे एक डायग्राम शेप मिल जाए तो, एक अच्छा सा शेप है इसके अंदर, हाँ ये रहा। सो लेट्स से इसके लिए एक अलग इक्वेशन है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ, सही है। सो ये शेप ना यूं करके, राइट, ये नहीं बन ही नहीं रहा, ये जो है ना, yes as a shape, let's say, so this is a curve, let's say, okay, and अब इस कर्व का सीन ये है कि तुम्हारे पास जो है ना, ओके, सो इस कर्व का सीन ये है कि you have 2 points where the tangents will be parallel to x axis, right? सही हो गया, 2 पॉइंट दिख रहे हैं, राइट, लाइक बिल्कुल सिंपल से केस है, राइट, कि तुम्हारे पास जो है ना 2 पॉइंट है कि जहाँ जो पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के, राइट। सो कभी कभार ऐसा कर्व बन जाता है कि जिसमें अगर इसी को तुम वर्टिकल कर लो, सो इस पे जो टेंजेंट बनेगा, या अगर तुम इसका नॉर्मल बनाओ, 2 पॉइंट्स का नॉर्मल बना लो, राइट, यहाँ पे तो नॉर्मल जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, राइट। ये बात समझ में आ रही है, कंडीशन समझ में आ रही है, या सिनेरियो समझ में आ रही है? हाँ जी। हमने क्या कहा कि भाई देखो, तुम्हारे पास लेट से मान लो कि ये कर्व है, सही। ये मैंने ग्राफ के ऊपर जो है ना एक कर्व प्लॉट किया है, सही है, ग्राफ के ऊपर मैंने एक कर्व प्लॉट किया है जिसकी इक्वेशन मेरे पास है, मैं तुम्हें जो इक्वेशन भी बता देता हूँ, सही है। सही है, हमारे पास जो है, जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास वो आ रही है x³ प्लस xy² प्लस ay² माइनस 3ax² इज इक्वल टू 0, राइट। हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है कर्व की, राइट। अच्छा, तुम्हें पता है कि भाई कर्व में अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को पकड़ूं, राइट, और मैं यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ,
तो यहाँ पे टेंजेंट जो है वो, उसका ग्रेडियंट क्या बता सकते हो तुम? टेंजेंट का ग्रेडियंट तुम्हें क्या दिख रहा है एट दीज 2 पॉइंट जहाँ पे मैंने रेड लाइन बनाई है? यस। एनी आइडिया? इन 2 पॉइंट पे ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट तुम्हारे पास 0 है। या तुम कह लो कि भाई राइट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट 0 है, राइट? सही है। एंड टेंजेंट itself is parallel to x axis, right? And tangent is parallel to x axis, right? क्या ये बात समझ में आ गई? यस। राइट। सो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे 0 है और टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट? अच्छा, सिमिलरली यही केस पॉसिबल होगा टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर तुम इसी को इन्वर्स कर लोगे, राइट? वर्टिकल कर लोगे, राइट? मेकिंग सेंस? सो पहला केस मेरे पास हो गया कि जिसके अंदर मैंने कहा कि भाई टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड केस के अंदर मैंने कहा कि भाई टेंजेंट विल बी, अच्छा जी, ये जगह क्यों कम पड़ रही है यार? अच्छा जी, सेकंड केस मेरे पास आ रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट विल बी इंफिनिटी, राइट? सही है, व्हेन एंड द टेंजेंट इज, सॉरी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट? अगर तुम इसी बिल्कुल शेप को वर्टिकल कर लोगे देन तुम्हारे पास यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा वो वर्टिकल आ जाएगा, राइट? सही हो गया। यानी अगर तुम जो है वो इसी चीज को, ये समझ में आ रहा है? अगर जो जी है जी। मैं इसी चीज को वर्टिकल कर लूँ, राइट? सो नाउ द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट? और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, राइट? सो ये तुम्हारे पास सेकंड केस आ गया, सही है। अच्छा, अब थर्ड केस। देखो इन सबको सॉल्व करना तो तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन तो मुश्किल नहीं है, राइट? थर्ड केस ये है कि भाई ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट के बजाय तुम नॉर्मल ले लो, राइट? सही है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट के बजाय तुम ले लो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज 0, राइट? एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट? सही है। या तुम टेंजेंट कह लो या नॉर्मल कह लो, राइट? नॉर्मल ही कह लेते हैं, राइट? नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट? एंड ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज infinity, एंड sorry, gradient of normal is infinity, right? And normal is parallel to y axis, right? क्या ये बातें समझ में आ गई? हाँ जी। सिनेरियो अज्यूम हो गया ये? जरा हाँ ना बोल दो प्लीज। सिनेरियो अज्यूम हो गया? यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, सो ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस डायरेक्टली आ रहा है, राइट? नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस डायरेक्टली आ रहा है, राइट? सो अब मुझे करना क्या है यहाँ पे? मुझे ये करना है कि जो देखो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, राइट? हमें इसको बेसिकली आगे जाके फिर इक्वेट करना होगा, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज 0, दिस मीन्स आई हैव टू इक्वेट दिस होल थिंग इक्वल्स टू 0, राइट? एंड देन आई हैव टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, राइट? ये करना होगा मुझे। सही हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज इन्फिनिटी है, राइट? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज इन्फिनिटी है, सो इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा 1/0। इन्फिनिटी का मतलब होगा, इन्फिनिटी को तुम रिप्लेस करोगे 1/0 से, राइट? 1/0 से, सही। एंड देन यू सॉल्व, सही। एंड सिमिलरली तुम थर्ड को भी सॉल्व करोगे इसी तरह से, फोर्थ को भी, सही है। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इसी तरह का होगा, सही है। आओ। सो क्या ये इस क्वेश्चन में आ रहा है मैक्सिमम पॉइंट कर्व? नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसे वो नहीं आ रहा।
अच्छा, इक्वेशन दी हुई है एंड कोऑर्डिनेट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस गिवन। ओके फाइन, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सही। क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि हम्म सो क्वेश्चन में तुमसे कह रहे हैं कि एक इक्वेशन तुम्हें दी हुई है। सही है। एल एन एक्स वाई, ओके, एंड माइनस फाइव क्यूब, सही है, इज इक्वल्स टू वन, राइट। एंड तुमसे कह रहा है कि भाई सबसे पहले तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, राइट। बेसिकली शो करना है, तो तुम्हें शो की वैल्यू बस निकालनी है, राइट। सो तुम क्या कर लोगे भाई? तो हम अप्लाई कर लेते हैं इसको हम, सही है। सो जब इसमें हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सो ये आ जाएगा। एल को जो हम डिफरेंशिएट करते हैं वो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई, राइट। और फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट। प्रोडक्ट रूल लगा लोगे, सो वाई ऐसे ही रह जाएगा, सही है। और फिर उसके बाद यानी एक्स वन हो जाएगा और वाई ऐसे ही रह जाएगा, फिर एक्स ऐसे ही रह जाएगा और वाई की जगह डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, राइट। तो जो क्या ये बात समझ में आई? अच्छा जनाब, ये एक बात हो गई। देन उसके बाद माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन हो जाएगा ज़ीरो, राइट। अच्छा जी, अब इसको अगर तुम दोनों के साथ लिख लोगे तो ये हो जाएगा वन ओवर एक्स, राइट, प्लस वन ओवर वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, राइट, डी वाई बाई डी एक्स। सही हो गया। मैंने क्योंकि बीच में प्लस साइन था तो इन दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख लिया है, सही है। एंड यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉमन, राइट। वन ओवर वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू जीरो, और प्लस ये मेरे पास आ गया वन ओवर एक्स, राइट। अच्छा जी, अब जो है वन ओवर एक्स उधर गया, सो ये मेरे पास बन गया डी वाई बाई डी एक्स, राइट। एंड यहाँ पे मेरे पास माइनस साइन आएगा तो माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दैट बिकम वाई स्क्वायर माइनस वन ओवर वाई, राइट। इसको वहाँ डिवाइड कर देते हैं, सही है। सो दैट बिकम थ्री वाई स्क्वायर माइनस वन ओवर वाई एंड देन एक्स, राइट। ये तुम्हारे पास आ रहा है, सही है। अच्छा जी, एक्स का जब तुम एलसीएम लोगे वाई का जब तुम एलसीएम लोगे, सो वाई चले जाएगा रेसिप्रोकल के ऊपर, राइट। एंड दिस बिकम थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी। अच्छा जनाब, एक सेकेंड आंसर चेक करने दो। इक्वेट फाइन स्टेट दिस एज ए, सही है। और जो इनका आंसर आ रहा है, सही है। अच्छा सॉरी, ये वाई क्यूब होना चाहिए ना, क्योंकि एलसीएम लेके ऊपर गया। सही है, सो ये तुम्हारे पास आ गया, सही हो गया। अच्छा जी, सो दिस इज बेसिकली डी वाई बाय डी एक्स, सही। यहाँ तक तो चलो ये आसान सी चीज़ थी, राइट। अब तुमसे सेकंड पार्ट में कह रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, राइट। सेकंड पार्ट में तुमसे कह रहे हैं कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where the tangent to the curve is parallel to y-axis, right? सही है। So find the coordinate of point where the tangent is parallel to y-axis, right?
सही। अच्छा जनाब, सो अगर तो टेंजेंट है, सही, अगर तो टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है, सो विच मीन डी वाई ओवर डी एक्स बिकम इन्फिनिटी, राइट? क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो जीरो होगा, वाई एक्सिस होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट? अच्छा जनाब, और इन्फिनिटी को तुम किससे भी रिप्लेस कर सकते हो? डी वाई ओवर डी एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज वन ओवर जीरो, राइट? ये तुम्हारे पास हो गया, सही हो गया। एंड जब तुम इसको फिर सॉल्व करोगे, सो वाई ओवर थ्री एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वन ओवर जीरो, राइट? सो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, सो दैट बिकम थ्री वाई एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वन, ये आ रहा होगा, राइट? नहीं सॉरी, जीरो बन रहा होगा, जीरो बन रहा होगा, राइट? एक्स कॉमन ले लो, सही है। एक्स को जब कॉमन लोगे, सो यू विल बी लेफ्ट विथ थ्री वाई क्यूब प्लस वन, यार ये प्लस माइनस हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है। अल्लाह अकबर, ये जो है ना जस्ट प्लस है, सही है, जो कि माइनस हो चुका है। यहाँ पे माइनस था और ये जो है ना प्लस हो गया, सही है। एंड यहाँ पे ये माइनस था और ये भी माइनस था, सही है। माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, राइट? सो एक एक्स की वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू जीरो, राइट? फिर उसके बाद जो सेकंड हुई आएगी, थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, और क्यूब है, राइट? सो वाई इज इक्वल्स टू वन ओवर थ्री क्यूब रूट ऑफ वन ओवर थ्री, राइट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, सही है। अच्छा जनाब, अब इसकी वैल्यू ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं। सही है जी। सो जब x को हम ज़ीरो रखेंगे इक्वेशन के अंदर, तो एल एन ज़ीरो तो और कुछ भी नहीं होता, सही है। सो मैथ्स एरर दे देगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट? ये वाली चीज़ बचेगी, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये वाली चीज़ को अगर हम इक्वेशन के अंदर रख लें, यानी वाई क्यूब की वैल्यू रख लेते हैं, चलो सही है, वाई क्यूब को ही हम रख लेते हैं वन ओवर थ्री, सही है। और हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर डाल देते हैं, राइट? सो एल एन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और y की जगह हमने डाल दिया वन ओवर थ्री, तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट करना होगा, राइट? और तुम्हारे पास जो है, अच्छा बाय द वे तुम्हें ये पता है ना कि तुम ln को एक्सपेंड कर सकते हो यहाँ पे, ln x प्लस ln y, राइट? प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू थ्री, राइट? ये कर सकते हो, माइनस वाई का क्यूब, राइट? माइनस वाई का क्यूब, और ये वन आ गया, राइट? सो अब हमें एल एन एक्स, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट? वाई का क्यूब जो है वो तुमने रख लिया वन ओवर थ्री, राइट? एंड देन वाई की वैल्यू जो है वो वन ओवर थ्री है, सही है। और वो क्यूब रूट जो होता है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, वन ओवर थ्री यहाँ पे सामने आ जाएगा, राइट? यहाँ पे माइनस आ गया, इज इक्वल टू वन, एंड देन एल एन एक्स, राइट? सो सॉल्व कर ले भाई, यहाँ पे प्लस है, राइट? सॉल्व करोगे क्या बनेगा? सो यू विल गेट वन प्लस वन ओवर थ्री, okay, and then minus 1 over 3 and then 1 over 3, right? So that is giving me the ln x as 1.6995, okay? Then take the exponent of the value, give me 5.54, okay? भाई समझ में आ गया? प्लीज आना बोलो। So that is turning out to be 5.47, okay? So this is how you have to solve, okay? बस ये जो क्वेश्चन थे इस तरह से सॉल्व होने थे। ये आखिरी चीज़ थी जो कि डिफरेंशिएशन की थी, ये हमने कंप्लीट कर ली है, राइट?
और बस अब अपनी क्लास यहाँ पे रोकते हैं। नाउ आई एम सेंडिंग यू, विल बी सेंडिंग द क्वेश्चंस राइट। अगर तो तुम्हारे पास है तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो, अगर तो नहीं है तो तुम उसको अटेम्प्ट करो बैठ के। एंड मैंने जो है ना डिफरेंशिएशन भी मेरा इरादा था कि साथ ही दूंगा, ये पता नहीं मैंने बोला था या नहीं बोला था, ले जाने। तो अगर तो तुम लोग कर लेते हो देन फाइन, डिफरेंशिएशन को भी इंक्लूड कर लेंगे और टेस्ट के अंदर, सही है। और फिर उसके बाद जो है आगे हमारे पास दो तीन चीज़ें ही बची हुई हैं, सही है, छोटी छोटी सी इंटीग्रेशन के अलावा। सही है, तो वो कंप्लीट होगा तो फिर कोशिश इरादा है कि इंशाल्लाह जनवरी के एंड तक जो है वो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो चले बस, चलो जी, ओके बच्चों, टेक केयर, हाफिज़।